Very good afternoon to all of you. So yesterday we were discussing about Woodrow Wilson and his contribution in the field of public administration. And thus the first age of public administration 1887 to 1926 that we have completed. तो विल्सन की विचारधारा और विल्सन के सिद्धांत क्या थे, इसी के साथ साथ हम लोगों ने लोक प्रशासन की स्थापना का प्रथम युग जो 1887 से 1926 तक चला उसके बारे में चर्चा की। और आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का स्वर्णिम युग जो द्वितीय चरण है और उसके साथ ही तृतीय चरण जिसको नवीन लोक प्रशासन का युग कहते हैं। And today we shall discuss about the second age, that is the golden age of public administration, and along with that the third age which is called as new public administration. थर्ड एज में क्या होता है और फोर्थ एज में, ये मैंने आपको बताया था कि संकट की शुरुआत होती है लोक प्रशासन और चतुर्थ चरण तक पहुंचते पहुंचते वो संकट बहुत बड़ा घनीभूत हो जाता है, जिसकी वजह से पांचवें युग में जब हम आते हैं तो नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा सामने आती है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक होगा जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं जिस विषय पर, इसमें दूसरा युग, तीसरा युग, चौथा और पांचवा युग एक साथ मिला होगा। So today that we are going to discuss about these topics, it will include the second stage of public administration, that is the golden age, third stage of public administration, that is the beginning of the crisis, fourth age of public administration, that is the deepening of crisis, and thus came the need for new public administration and giving rise to the fifth age, that is new public administration. So today onwards we are going to start a lecture which will include second age, third age, fourth age and the fifth age, these together. Is that very clear? तो कुछ पॉइंट्स लिखिए आप। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम चरण, evolution of public administration from second, third, fourth to fifth stage. लोक प्रशासन के प्रथम चरण में, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन व अन्य बुद्धिजीवियों और विचारकों के प्रयासों से with the efforts of Woodrow Wilson and other scholars, लोक प्रशासन को एक पृथक विषय के रूप में विधिक मान्यता प्राप्त हुई। Public administration was recognized legally and formally
as a new and independent discipline. तो वहीं दूसरे युग में, then in the second age, लोक प्रशासन को सार्वभौमिकता और वैज्ञानिकता प्राप्त हुई. Public administration became universal and scientific. इसलिए इसे स्वर्ण युग लोक प्रशासन का कहा जाता है. Therefore, it is known as the golden age of public administration. क्योंकि इस युग में, because in this period, लोक प्रशासन के नए नए सिद्धांत, साहित्य, विचार, पठन सामग्री और विषय वस्तु का विकास हुआ. Because in this period the literature, principles, theories, subject matter and content of public administration was developed. उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, one creative experience. In 1924, by M.P. Follett. For example, creative experience, 1924, M.P. Follett. Creative experience, 1924, M.P. Follett. Principles of public administration, 1927. By W.F. Willoughby. Principles of public administration, W.F. Willoughby. Papers on the science of administration, (1937). By Luther Gulick. And Lyndall Urwick. Papers on the science of administration, लूथर गुलिक एवं लिंडाल उर्विक
Principles of organization. (1939) by J.D. Mooney and A.C. Riley. Apart from these writings, इन लेखों के अलावा साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी ऑफ F.W. टेलर, F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत Administrative theory of organization by Henry Fayol, हेनरी फेयोल द्वारा प्रशासनिक संगठन का सिद्धांत An ideal type bureaucracy by Max Weber, तथा मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया आदर्श नौकरशाही सिद्धांत and many other such theories, principles, and ideas और इसी प्रकार के बहुत सारे वाद, सिद्धांत और विचार enriched the literature of public administration as a subject. ने लोक प्रशासन के विषयगत साहित्य को समृद्ध बनाया। At that time, उस समय it was considered that यह माना गया कि these principles are universal and scientific in nature. ये सिद्धांत और विचार सार्वभौमिक और वैज्ञानिक हैं। And are applicable throughout the world.
और समूचे विश्व में समान रूप से लागू होते हैं। Hence, public administration is not only a separate and distinct subject, अतः लोक प्रशासन न सिर्फ एक अद्वितीय और पृथक विषय है, but it is also universal and scientific. बल्कि यह सार्वभौमिक और वैज्ञानिक भी। That is why it is regarded as the golden age of public administration. और इसीलिए इस अवधि को लोक प्रशासन का स्वर्ण काल कहते हैं। इसी अवधि को लोक प्रशासन का स्वर्ण काल कहते हैं। Change. Almost by the end of 1937, लगभग 1937 की समाप्ति के आसपास प्रोफेसर बियर्ड एंड हर्बर्ट साइमन प्रोफेसर बियर्ड और हर्बर्ट साइमन ने raised serious concerns and doubts about the so-called universal and scientific principles of public administration. ने लोक प्रशासन के इन तथाकथित सार्वभौमिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अपनी संशय और चिंताएं प्रकट की। And thus began the third period of public administration. और इस तरह से लोक प्रशासन का तृतीय चरण प्रारंभ हुआ, which is called as the beginning of crisis. जिसे लोक प्रशासन में संकट का प्रारंभ माना जाता है। As this crisis deepened, in the fourth stage, अपने चतुर्थ चरण तक आते आते यह संकट घनीभूत होकर बढ़ता चला गया। And it almost appeared that, और लगभग ऐसा प्रतीत होने लगा कि the new nascent
and the separate discipline of public administration will evaporate soon. In the thick heat of criticism, कि अपने गहन आलोचना की ऊष्मा से लोक प्रशासन नाम का यह नवीन नवजात विषय शीघ्र ही वाष्पीकृत होकर समाप्त हो जाएगा। ये निकोलस हेनरी का स्टेटमेंट है। इस पर यूपीएससी में सवाल आया है। सवाल यूं पूछा गया है कि इन विच स्टेज इट इज सेड दैट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल इवेपोरेट in the thick heat of criticism and why? तो निकोलस हेनरी का ये फ्रेज है कि इट विल इवेपोरेट इन द थिक हीट ऑफ क्रिटिसिज्म। जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो तो जल ऊष्मा से वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन करके भाप बन के उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे सूखता चला जाता है। तो लोक प्रशासन पर इतने प्रहार, इतने आलोचनाएं, इतने उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए चौथे युग में कि ऐसा लगने लगा कि जो अभी अभी विषय बना ही है, नया नया, अभी ठीक से जो खड़ा भी नहीं हो पाया, अभी जिसको बने ज्यादा समय नहीं बीता, उसका अंतकाल ही निकट आ गया। अब वो मरणासन हो गया। ये बात आ रही समझ? Thus in the fifth stage, अतः पांचवें चरण में a new idea of public administration emerged. लोक प्रशासन की एक नई अवधारणा विकसित हुई, which is known as new public administration, जिसे नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। Now, NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन। अब ये जो दौर था 1969-70 से लेकर के 1990 तक का, ये लगभग 30 साल के आसपास, और खासतौर से 1960s, लेट 1960, 1960 के जो आखिरी दशक के समय का बचा हुआ हिस्सा था, उस समय अमेरिका में क्या हो रहा था। उस समय अमेरिका अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट के दौर में से एक में गुजर रहा। जो अमेरिका आज आप देख रहे हैं, वैसा अमेरिका
60s और 70s में नहीं था। उसके पीछे वजह क्या थी? पहली वजह ये थी कि वियतनाम युद्ध में अमेरिका की मनोवैज्ञानिक पराजय। इन द वियतनाम वॉर यूएसए वॉज साइकोलॉजिकली डिफीटेड। और जैसे 2020-21 में अफगानिस्तान छोड़ करके अमेरिका भागा, वैसे ही लगभग वैसे ही वियतनाम छोड़कर भागने के लिए अमेरिका मजबूर हो गया। कई सारे सवाल अमेरिकी देश के लोगों ने अपनी सरकार से पूछना शुरू कर दिया कि वियतनाम में हम आखिर किसके लिए और किसकी लड़ाई और क्यों लड़ रहे हैं? ये हजारों लाखों करोड़ों अरबों डॉलर हमारी वियतनाम की लड़ाई पर हमारे देश के पैसे को खर्च क्यों किया जा रहा है? इससे हमें आखिरकार हासिल क्या हो रहा है? और अमेरिका के सामने अगर देखें तो वियतनाम की हद और हैसियत ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं है। और न ही तो अमेरिका का पड़ोसी देश वियतनाम है या अमेरिका की सीमाएं वियतनाम से जुड़ी हुई हैं कि कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, कोई आपस का कोई झगड़ा है। कहां वियतनाम है एशिया में और कहां अमेरिका है? और वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका फंस गया, ट्रैप में आ गया, क्योंकि वियतनाम के जो लड़ाका लोग थे, जो वहां की सेनाएं थी, वो ये जानते थे कि अमेरिका से आमने सामने की तो लड़ाई में हम जीत नहीं सकते। तो उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया, छुप के घात लगा के वार करो, हमला करो और भाग जाओ। तो जहां जहां अमेरिकी हो वहां घात लगा के छुप के बैठे रहो और जैसे मौका मिले हमला करो, मारो और भाग जाओ। जब तक अमेरिकी समझे अपने हथियार उथियार लेकर के, तब तक उनको ढेर दो। और वियतनाम की ज्योग्राफी से, टोपोग्राफी से, वहां के भूगोल से, वहां के जमीनी हकीकत से तो अमेरिका वाकिफ था नहीं। और रोज जब अमेरिका के फौजी जहाजों से अमेरिकी सैनिकों के शव वियतनाम की लड़ाई में जो मारे जा रहे थे वो अमेरिका में उतारे जाते थे, तो भारी दुख, आक्रोश, गुस्सा और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और ऐसी गले की हड्डी बन गई वियतनाम की लड़ाई कि न उगलते बने न निगलते बने, क्योंकि कहां अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश और कहां वियतनाम जैसा एक बिल्कुल छोटा सा, उसके आगे अदना सा मुल्क। अब अगर वियतनाम छोड़ के भाग जाता है अमेरिका, तो सारी दुनिया कहेगी देखो 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 देखो, दुम दबा के भाग गया। ये इतना बड़ा महाशक्ति बनता है, इतनी ताकतवर इसकी सेना है, कहता हम तो सुपर पावर हैं, और वियतनाम में टिक नहीं पाया, लड़ नहीं पाया। और अगर लड़ रहा है, अपनी जंग जारी रखता है, तो उसको रोज के हिसाब से लाखों करोड़ों अमेरिकी डॉलर अमेरिका की सेना की लड़ाई पर खर्च के लिए वहन करने हैं, झेलने हैं। दिनों दिन अमेरिका की जो इकोनॉमी है, आर्थिक हालात हैं, वो खस्ताहाल होते चले गए। क्योंकि जो पैसा अमेरिका के उद्योग में, अर्थव्यवस्था में, अमेरिका के लोगों के विकास में लगना चाहिए था, शिक्षा में, स्वास्थ्य में लगना चाहिए था, वो पैसा सरकार ने किधर मोड़ दिया था? वियतनाम की लड़ाई में। अपनी नाक कैसे बचाएं, अपनी इज्जत कैसे बचाएं, और कैसे वहां वियतनाम को हरा करके वापस आए, क्या करें क्या ना करें। और आखिरकार
इतना दबाव पड़ा और इतनी इकोनॉमी हालत खराब हो गई कि वहां से फिर भागना ही पड़ा। और सारी दुनिया में अमेरिका की वो हंसी, वो मजाक, वो थू हुई कि पूरा अमेरिका समाज, वहां के लोग, वहां के देश का जो मनोवैज्ञानिक मनोबल था वो टूट गया। अब कहीं अमेरिकी विदेश में कहीं जाता था, अच्छा तो आप वहीं वाले देश से हो, वियतनाम वाले देश से जहां भागे थे आप, उसी अमेरिका की बात कर। तो जहां वो शेफी बघाड़ता था, डींगे बोलता था, अब वहां जब दुनिया के मंचों पर इकट्ठा होते थे तो अरे आप अमेरिका वाले हैं, ठीक बात। और अमेरिका की इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको बेल आउट पैकेज देने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट उस समय थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज अलग से दिया जिसको उन्होंने नाम दिया द न्यू डील। मतलब इतने हालात खराब हो गए, इकोनॉमी मंदी के घोर शिकंजे में आ फंसी थी, अर्थव्यवस्था लगभग बिगड़ चुकी थी, उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, बेरोजगारी की दर आसमान छू रही थी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, मुद्रास्फीति सरकार के चाहने पर भी कंट्रोल में नहीं आ रही, इन्फ्लेशन बिकेम बियॉन्ड कंट्रोल, unemployment reached to skies, rate of growth and development declined to its lowest। ऐसे में अमेरिकी नौजवान जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से पढ़कर निकल रहा था, उसके पास रोजी रोटी रोजगार का संकट पैदा। और यही वो दौर था जब अमेरिका में ड्रग्स कल्चर बहुत तेजी से फैला, वहां का हर युवा नशे की गिरफ्त में आ चुका था, मार्जुआना, हशीश, कोकेन, अफीम, हर तरीके का ड्रग्स वहां का नौजवान ले रहा था और उसकी गिरफ्त में था, और रोजी रोटी मिल नहीं रही थी, पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी थी, हालात खराब थे। तो वो लंबे लंबे बाल बढ़ा करके, यहाँ पर सर पे बैंड लगाकर, फीता बांधकर, हाथ में गिटार लेकर, फटी हुई जीन्स पहनकर, सड़क सड़क, बाजार बाजार, चौराहे चौराहे, नुक्कड़ नुक्कड़, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर गिटार बजाते थे, बैंजो बजाते थे और ऐसे झूमते और नाचते थे नशे में, एकदम धुत, और भीख मांगते। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा गया हिप्पी कल्चर। आप याद कीजिए, शायद आपने देखा भी हो, 1970s के दौर में देवानंद साहब ने एक फिल्म बनाई थी, हरे रामा हरे कृष्णा। उसका एक गाना अपने जमाने में बड़ा मकबूल, बड़ा मारूफ, बड़ा मशहूर हुआ था, आज भी है, और उसके तरह तरह के वर्जन्स आजकल निकाले जा रहे हैं, रीमिक्स और फ्यूजन और क्या क्या, जिसमें दम मारो दम, ये गाना चल रहा है। याद आपने भी सुना ही होगा ये गाना, जिसमें नौजवान पीढ़ी जो है एकदम बेहोश बेसुध होकर के और एकदम मदमस्त होकर हाथ में चिलम पी रही है और दम मारो दम मिट जाए गम, ये गाना गा। और उसमें ये यही अमेरिका के और यूरोप के लड़के लड़कियों को, नौजवानों को, विदेशियों को दिखाया गया। तो ये जो अमेरिका का नौजवान था, दम मारो दम मिट जाए गम, जो हशीश और कोकेन और अफीम के नशे में शिकार होकर के और बेतरतीब बाल बड़े बड़े और न नहाए न धोए, न साफ न सुथरे, और फटी शर्ट और टी शर्ट या जीन्स पहने और हाथ में गिटार और बैंजो लेकर जगह जगह गाना बजाना, सड़कों के किनारे
चौराहों पर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांग रहे। तो इसको अमेरिका के सोशल साइंटिस्ट ने कहा, अमेरिका इज इन द ट्विजर ग्रिप ऑफ हिप्पी कल्चर। अमेरिका हिप्पी संस्कृति के गहरे गिरफ्त में आ चुका है, ऐसा वहां के सामाजिक वैज्ञानिक समाजशास्त्रियों का। तो हिप्पी कल्चर टर्म बड़ा पॉपुलर हो गया। तीसरी बात, जब इकोनॉमी कमजोर है, वियतनाम युद्ध में आपकी मनोवैज्ञानिक पराजय हो चुकी है, अमेरिका का नौजवान हिप्पी कल्चर की गिरफ्त में आ चुका है, अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं, तो सरकार का नियंत्रण जनता पर, प्रशासन पर कमजोर पड़ता। नतीजा क्या हुआ कि जो आदमी नशे का शिकार है, नशे का लती है, भीख मांगने से भी पैसा मिल नहीं रहा, क्योंकि भीख देने के लिए भी तो पैसा चाहिए, और पेट में भूख की आग भी लगी हुई है, और लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है, और भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है। तो भूखा आदमी पहले खुद से कोशिश करेगा कि कुछ रोटी पा जाए, जब उस कोशिश में नाकाम रहेगा तो भीख मांगेगा, जब भीख भी नहीं मिलेगी तो लूट ले, छीन लेगा। क्योंकि बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, मोड़ पर ले जाती है, भूख ले जाती है इसे मोड़ पर। आदम गोंडवी साहब का शेर है ये कि बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को, और शबनमी होठों की गर्मी दे ना पाएगी सुकून। शबनमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून, पेट के भूगोल में उलझे हुए। जो आदमी पेट के भूगोल में उलझ जाता है ना, फिर वो इश्क, हुस्न, मोहब्बत सब पना हो जाते हैं सब। जहां 2 रोज भूखे पेट रहना पड़ जाए, सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि ये फागुन की दिलकश शाम जो फाकों में गुजर जाए, ये फागुन की दिलकश शाम जो फाकों में गुजर जाए, मेरा दावा है उसके हुस्न का जादू उतर जाए। और तखय्युल में तेरी सूरत का खाका खींचने बैठे, बड़ी हैरत हुई जब अक्स रोटी के उभरा। तखय्युल मतलब ख्वाब, सपने में हम बैठे तो थे तुम्हारी सूरत बनाने के लिए, लेकिन बनकर क्या आखिर सामने आया, रोटी का टुकड़ा। अमेरिका में शिकागो अपराध की राजधानी बन गई। इट वॉज कॉल्ड एज द क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, विच वॉज रूल्ड बाई द सिंडिकेट्स एंड माफियाज। माफियाज एक बड़ी मशहूर फिल्म है, कभी देखना, मारियो पुजो का नॉवेल है, उपन्यास है, द गॉडफादर। और इसमें जो हॉलीवुड के बड़े मशहूर एक्टर हैं, जो उन्होंने एक्टिंग की है, वो लाजवाब है। मतलब ऐसा माना जाता है कि द गॉडफादर एक माफिया की कहानी है। माफिया वर्ड इटालियन वर्ड है, जो कि गैर कानूनी काम में लगे होने वाले लोगों का समूह है। उसका जो सबसे बड़ा बॉस है उस माफिया ग्रुप का, वो गॉडफादर है। वो जो चाहता है वो होता है, वो करता है, और सरकारें उसके इशारों पर नाचती हैं या उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं। वो एक समानांतर लोक प्रशासन, एक समानांतर सरकार चलाता है, पैरेलल गवर्नमेंट।
मारियो पूजो का ये उपन्यास, और जिसमें रॉबर्ट डी नीरो, अमेरिका हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे अपने जमाने में, उन्होंने, रॉबर्ट डी नीरो ने इसमें माफिया का, द गॉडफादर का मेन लीड रोल प्ले किया है, और जबरदस्त वो नॉवेल है, जबरदस्त एक्टिंग है। उनके बाद अगर किसी हॉलीवुड डायरेक्टर की फिल्म्स मुझे पसंद आती हैं तो स्टीफन स्पीलबर्ग। स्टीफन स्पीलबर्ग इज नॉट द डायरेक्टर, ही इज अ फिलोसोफर। आप उनकी शिंडलर्स लिस्ट देख लीजिए, या आप उनकी कोई मूवी स्टीफन स्पीलबर्ग की देखेंगे तो आप बस बंधे के बंधे, बैठे के बैठे सम्मोहित होकर रह जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे जब तक पूरा सिनेमा खत्म। और सिनेमा खत्म होने के बाद घंटों आपके दिलो दिमाग में वो फिल्म हावी है। तो शिकागो और पूरे अमेरिका में, खास तौर से शिकागो में, crime and unlawful activities became a new norm. अपराध इतना बढ़ गया कि कब बैंक लूट लिया जाए, कब दुकान लूट ली जाए, कब शोरूम लूट लिया जाए, कब सड़कों पर गैंग वॉर होने लगे, गोलियां चलने लगे, शहर पर किसका कब्जा होगा, इस माफिया डॉन का कि उस माफिया डॉन का, ये उसका इलाका कि वो उसका इलाका, कि शहर में निकलना मुश्किल, कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप घर जिंदा लौट कर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी वहां की सरकार दे नहीं सकती। ये अंदर के हालात थे, बाहर के हालात मैंने बता दिए। यही वो दौर था जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने द लॉन्ग मार्च डिक्लेयर किया, क्योंकि अमेरिका की आधे से ज्यादा अश्वेत आबादी, नीग्रो पॉपुलेशन, ब्लैक पॉपुलेशन, उनको न राजनीतिक अधिकार थे, न सामाजिक अधिकार थे, न आर्थिक अधिकार थे, और वो सामान्य मानवीय गरिमा से भी वंचित रखे गए। So they were deprived of even the basic human necessities and needs. They were denied all due social, political, economic rights. They were treated as slaves. And more than half of the American black population was suffering from different types of discriminations, trauma, agony, pain, and all sort of negative things. So they came to the streets to show their anger against the government, against the public administration. And Martin Luther King became the hero of America, especially of these black people. और उनका लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम, ये अमेरिका की और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जब उन्होंने अमेरिका की सरकार को हिला के रख दिया। एंड इट वॉज अ प्योरली नॉन वायलेंट मूवमेंट। लेकिन जब दूसरा आदमी अंदर से गलत होता है ना, तो वो कमजोर पड़ जाता है, उसकी अपनी ताकत जवाब दे जाती है। वो बाहर से दिखावा चाहे जो भी करता हो, लेकिन गलत आदमी अंदर से बेहद डरा हुआ और कमजोर होता है, क्योंकि उसे तो पता है उसकी असलियत क्या है। अमेरिका के इस आंदोलन ने अमेरिका की सरकार को घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये कौन सा दौर अमेरिका में चल रहा है, जहां पर हिप्पी कल्चर है, जहां पर शिकागो क्राइम कैपिटल बन चुकी है, जहां पर माफिया वॉर हो रहा है, जहां माफिया पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, जहां इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट,
लगातार बंद होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, जहां महंगाई आसमान छूती जा रही है, जहां पर अमेरिका की बड़ी शक्तिशाली दुनिया की फौज वियतनाम वॉर में साइकोलॉजिकल डिफीट से होकर गुजर रही है, जहां पर ब्लैक पॉपुलेशन अपने राइट्स और अपने डिमांड्स को लेकर सड़कों पर उतर आई है, जहां पर हर इंसान अमेरिका का सरकार और लोक प्रशासन से नाराज है, खफा है, आक्रोशित है, कुंठा में है, या बेहद तनाव, दबाव, हताशा में है, अवसाद में। ऐसा दौर था। वो एक अलग स्टोरी है। बाहरी लोग हों, भीतरी लोग हों, अगर सरकार चाह ले तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो नहीं सकता। आप राह चलते सड़क पर जा रहे हैं, आपकी साइकिल मोटरसाइकिल भिड़ गई, दो लोग गुस्सा हो गए, मुक्का मुक्की मार दिए, ये तो ह्यूमन नेचर में है, समझ में आता है। जिसकी सजा सिद्धू जेल काट रहे हैं। रोड रेज कि गाड़ी से जा रहे हैं, टक्कर हो गई, मुक्का मार दिए, वो आदमी मर गया, अब तिहाड़ जेल में पिछले 1 साल। या चाचा भतीजा में जमीन और संपत्ति का विवाद हुआ, कहा सुनी हुई, भतीजे ने चाचा चाकू मार दिया। अब ये तो सरकार नहीं रोक सकती, लेकिन कोई संगठन बनाकर अपराध करे और करता ही चला जाए, ये 2 ही वजहों से हो सकता है। या तो सरकार इतनी कमजोर और नाकाम है कि रोक नहीं सकती, या सरकार ने उसको संरक्षण दे रखा है, बस। तीसरा कोई कारण। सरकार चाहे तो क्या वीरप्पन और क्या श्री प्रकाश शुक्ला और क्या विकास दुबे और क्या मुख्तार अंसारी और क्या XYZ, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है। तो अगर ड्रग्स सिंडिकेट बाहर से, मैक्सिको से, यूरोप से, दुनिया के दूसरे देशों से सप्लाई कर पा रहे थे, तो ये भी तो गवर्नमेंट की नाकामी है ना। आप देखें, मैंने कई बार बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और CRPF और जो एंटी नक्सलाइट मूवमेंट में फोर्सेस हमारी लगी हैं, उनको कोबरा कमांडोज कहते हैं। CRPF का ये कोबरा स्पेशल टीम है जो एंटी नक्सल मूवमेंट्स में लगाया जाता है। तो उनके कई सीनियर अफसर से मैंने पूछा कि दंतेवाड़ा के जंगलों में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, आंध्र प्रदेश में जब नक्सलियों पर कार्रवाई होती है और कुछ नक्सली मारे जाते हैं और उनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद होता है, तो वो सब मेड इन चाइना और रशिया और अमेरिका और दुनिया के आज के दौर के जो सबसे बेहतरीन हथियार हैं, जो सबसे मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स हैं, वो उनके पास 1-2 नहीं, जखीरा है, पूरा भंडार भरा हुआ। तो क्या चीन और रूस की सेना उड़ीसा से सटी हुई है कि धीरे से रात में सप्लाई कर दिए? तो वो जिस रास्ते से वहां पहुंच रही हैं, आप सोचिए कितने राज्य की पुलिस से गुजरते हुए, कितने पुलिस थानों से गुजरते हुए, कितने चेक पोस्ट से गुजरते हुए तब वो दंतेवाड़ा के जंगलों तक पहुंचे। और अगर समंदर के रास्ते से आए हैं तो हमारी नेवी, हमारी कोस्ट गार्ड क्या कर रहे हैं? और हवाई जहाज के रास्ते तो इतना बड़ा, मतलब युद्ध में बम आप भले गिरा दें इस तरीके से, जैसा पुरुलिया में, आप सोचिए पुरुलिया में क्या हुआ था। पुरुलिया में 20-25 साल पहले की बात है,
एक हवाई जहाज से हथियारों का जखीरा एयर ड्रॉप किया गया, जिसकी खुफिया सूचना भारत सरकार को विदेशी खुफिया एजेंसियों ने दे रखी थी कि ऐसा हो सकता है। दिल्ली के होम मिनिस्ट्री के जिन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने बिहार और बंगाल की सरकार को पोस्ट कार्ड, उस जमाने में चला करता, पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेजा था, खुफिया सूचना को पोस्ट कार्ड पर लिखा। और जब पुरुलिया का वो एयर ड्रॉप करके हथियार गिरा करके जहाज चला गया, तब हमारी एयरफोर्स अलर्ट मोड पर आई और उन लोगों ने चारों ओर से उसको घेर लिया जहाज को। और वेस्ट बंगाल के दमदम एयरपोर्ट पर, जो अब सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहलाता है, पर फोर्स्ड लैंडिंग के लिए मजबूर कर दिया, जहां नीचे पहले से ही सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी पूरे हथियारों के साथ। और जैसे ही फोर्स्ड लैंडिंग हुई, उस विमान की जिसने हथियार गिराए थे, वैसे ही पुलिस के अफसर तुरंत धावा बोल के रेड मारते हुए घुस गए हवाई जहाज में। और जानते हैं उन्होंने रिपोर्ट में क्या किया? तो उनको वहां कोई नहीं। इज इट पॉसिबल कि कोई फोर्स्ड लैंडिंग हुई हो एयरपोर्ट पर, जिस पर चारों ओर से पुलिस का पहरा हो, तो कोई ना कोई तो उसको चला रहा होगा ना, कोई पायलट, कोई को पायलट होगा। उसमें कोई कैसे नहीं मिला? इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट ने उन लोगों को जाने दिया, या ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थे कि इन लोगों को छोड़ दिया गया। इससे और क्या मतलब आप निकाल सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का अगर प्रोटेक्शन या शेल्टर या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, या कुछ भी कह लीजिए, नहीं होता, तो क्या ये मुमकिन है? किसी को आप समझाएंगे तो समझ में आने वाली बात है। तब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि वो ड्रोन से चल रहा है। तो अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा था, अगर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो या तो उसका फेल्योर था, या उसकी ओर से ही किया जा रहा था। दोनों ही सूरत हाल में अमेरिका की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार थे। देखिए, फिल्में जो होती हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है, ऐसा कहा जाता है। और सिनेमा भी अपने दौर के समाज को दिखाता है। आप 1950-60s में देविका रानी और दिलीप कुमार की फिल्म देखिए, और के.एल. सहगल साहब जिसमें हीरो हुआ करते थे, तुम्हारा नाम क्या है मधुवंती, जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी होती थी, जिस तरीके का पिक्चराइजेशन होता था, जिस तरीके की सोशल स्टोरीज पिकअप की जाती थी, वो उस दौर में वैसा था। फिर आपने हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, इंडिया में हिंदी फिल्मों का पहला सुपरस्टार देखा, राजेश खन्ना को, जो ट्रेन के पैरेलल गाड़ी चलाते हुए खुली जीप में कह रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसके रूमानियत भरे अंदाज, आई हेट टीयर्स पुष्पा, ने राजेश खन्ना को स्टार बना दिया। क्योंकि ये राजेश खन्ना जब स्टार बने, उस दौर में हिंदुस्तान के समाज में
सोशलिज्म का बोलबाला था, और लोग आजादी के तुरंत 10-20 साल बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे थे, आम जनजीवन संतुष्ट था। तो जब आदमी आम जनजीवन संतुष्ट रहता है तो फिर प्रेम मोहब्बत कविता कहानी कहता है। लेकिन 70s तक आते आते क्या हुआ, इमरजेंसी लग रही है, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा हुआ, नसबंदी लगा दी सरकार ने, जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग शुरू कर दिया, तरह तरह के अत्याचार शुरू कर दिए, गोलीबारी शुरू कर दी, सरकार के खिलाफ गुस्सा हुआ लोगों के मन में। तो इस दौर में एक दुबला पतला नौजवान एंग्री यंग मैन बनकर पर्दे पर उतरा। जिसके एक घूंसे से पूरा बदमाशों का जो अड्डा होता था वो हिल जाता था, और वो अकेले एम्बुलेंस लेके पहुंचता था कि भाई तुम मुझसे लड़के इस एम्बुलेंस से जाना पसंद करोगे, लड़खड़ा के जाना, या भाग जाना पसंद करोगे। तो उसकी आंखों में हमेशा गुस्सा रहता था, वो सरकार से नाराजगी प्रकट करता था, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ता था। तो उसने रूमानियत को धकेल कर उस लंबे दुबले पतले नौजवान की लाल सुलगती आंखों ने और सुर्ख जोशीली आवाज ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया, जिसको हम अमिताभ बच्चन कहते हैं, यंग एंग्री मैन। 70s और 80s में फिर पूरा दौर अमिताभ बच्चन का चला। 90s में क्या हुआ, 90s तक आते आते इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान आ गई, इकोनॉमी खोल दी गई। अब यहाँ पर कोका कोला और पेप्सी और बर्गर और पिज्जा और बिकने लगा। तो अब जो हीरो है वो किरण कहने लगा। अब वो राज और राहुल बन करके वो मोहब्बत का, रोमांस का किंग बन गया। वो जिस तरीके के स्कूल कैंपस में घूम रहा था वो हमारे सपनों का कैंपस था। हमने तो आज तक ऐसा कैंपस देखा नहीं है स्कूल में कभी। जैसा स्कूल और कॉलेज कैंपस में वो गाड़ियां, मोटरसाइकिल और खुली गाड़ियां लेके चलता था, वो उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हो गया। अब आज 22-23 में क्या हो रहा है, मिर्जापुर हो रहा है। कालीन भैया आश्रम हो रहा है। ओटीटी पर कंटेंट एंड स्क्रिप्ट इज द न्यू हीरो। स्पेशल ऑप्स के क्योंकि आज के दौर में आमतौर पर यही सारी चीजें हमारे समाज में हो रही हैं जो उसमें दिखाया जा रहा है। अब वो थोड़ा फिल्मांकन करते हैं तो उसमें नाच गाना डाल देते हैं, वरना बेशरम रंग किसने देखा है? रंग कब से बेशरम होने लगे? तो अपने दौर के हिसाब से वो चाहे दिलीप कुमार, राजकुमार, राज कपूर, देवानंद साहब का दौर रहा हो, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन का रहा हो, शाहरुख, सलमान, आमिर का रहा हो, उस दौर की कहानियां देखिए, उसका स्क्रिप्ट देखिए, उसका सिनेमा देखिए, उसका लिटरेचर देखिए और उस दौर की सोसाइटी को देखिए। और आज देखिए, आज के दौर के नायक कौन है? नवाजुद्दीन, दीपक त्रिपाठी, विजय राज, जो साधारण चेहरे मोहरे वाले लोग, जिनके अंदर सो कॉल्ड हीरो एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जो राजेंद्र कुमार हुआ करते थे कि एकदम सुर्ख लाल लाल होंठ हैं और बढ़िया खूबसूरत गोरे चिट्टे हैं और लंबे चौड़े हैं, और माँ मैं बीए फर्स्ट क्लास पास हो गया, माँ, और माँ रोने लगी उसके बाद क्योंकि गरीबी में उनका बेटा, माँ मैं बीए पास हो गया। और वो बीए जरूर पास होते थे हर फिल्म में,
और फिर या तो उनका हाथ कट जाता था या पैर कट जाता था या आंख अंधे हो जाते थे, फिर वो जिससे प्यार करती थी वो बड़े भाई से शादी हो जाती थी, उसी घर में आ जाती थी, और फिर यही सब कहानियां चलती। मेलोड्रामा होता। आज राजेंद्र कुमार और राजकुमार अगर आ जाएं और संजीव कुमार, तो डायरेक्टर मार के भगा दे कि ये हीरो बनने लायक नहीं। और अपने अपने दौर के बड़े लोग सिल्वर जुबली सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले लोग थे। टुडे लुक्स डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स व्हाट यू डू। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विजय राज और दीपक त्रिपाठी और राजकुमार राव और इस तरह के लोग, तो कंटेंट और स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। अब स्टार पावर से सिनेमा नहीं चलता है। स्टार पावर से केवल एक बार शुरुआत में दर्शक सिनेमा देखने के लिए पहुंच सकता है। वो फिल्म फिर चलेगी नहीं चलेगी, ये उसकी स्क्रिप्ट और स्टोरी और डायरेक्शन इस पर डिपेंड करे। वरना लाल सिंह चड्ढा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जीरो, रावण, एक से एक नाम है, करोड़ों रुपए में फिल्में बनी, बुरी तरह फ्लॉप हुई। क्योंकि केवल आप स्टार पावर पर, ग्लैमर पर आप फिल्म नहीं चला सकते। तो इसी तरह से जिस दौर में आप रहते हैं, जब उस दौर के, आप मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज के जमाने में नहीं लिखा जा सकता। अब रामचरितमानस 500 साल पहले तुलसी बाबा लिख कर गए, अब आज आप उसमें किसी लाइन को लेकर के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है? और अभी 2019 तक, चुनाव के पहले आप भाजपा में थे, तो रामचरितमानस घूम घूम गाते थे। ये सियासतदान लोग हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं। इज दैट वेरी क्लियर? तो ऐसे दौर में जब अमेरिका इन सब उतार चढ़ावों से गुजर रहा था, एक नई विचारधारा सामने, जिसको नाम दिया गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन। क्या थी ये विचारधारा? क्या कहा गया इसमें? ये कैसे पिछली लोक प्रशासन से अलग थी और इसका हुआ क्या? अंजाम, परिणाम, नतीजा, निष्कर्ष क्या निकला? सो व्हाट वाज एनपीए? How it was different from the traditional old public administration? What was new in this new public administration? How it evolved? How this name NPA came into existence and who coined this name? And what was the conclusion and the impact of NPA? That we will take up tomorrow. ठीक है ना? कोई शक, कोई सवाल, कुछ भी जो आप पूछना, क्योंकि वो लंबा है, वो नहीं पाता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एनपीए। क्लियर? थैंक यू। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूरी बात समझ पाए? तो अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी हम लोग एनपीए कल करेंगे, क्योंकि टाइम आज कम बचा है और लॉ की क्लास अब शेड्यूल्ड है, तो 5-10 मिनट बाद वो क्लास हो। थैंक यू।